next topic that we are going to take today is India invokes peace clause under WTO. Last year we discussed WTO at a great length. If you scroll through the playlist, you will see key rules of origin. When we were discussing rules of origin, we discussed WTO at great length. But today also we will be discussing it in a brief, what WTO is, why has India invoked peace clause, what peace clause is, and how it affects Indian agricultural system. Okay. Now what is news? News is India has invoked the peace clause for third time as rice subsidies exceed cap. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है subsidies. ठीक है, every government provides subsidies to its farmers and its people. Now why are we concerned कि इंडिया अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें WTO जाने की क्या जरूरत है, राइट? Okay, we'll try to understand what are subsidies and why are subsidies not promoted a lot, and why every time a country like India provides a lot of subsidies, there is always a conflict in WTO. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समझना कि WTO क्या है एंड WTO में कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्यों अराइज होता है. तो WTO इज वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो WTO इज वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. इसका मैंडेट ये है to maintain free and fair trade. To maintain free and fair trade. ठीक है, तो maintain free and fair trade. That means it's the mandate of WTO is to ensure that the trade in world is free from all the restrictions and barriers. Okay, like there are two countries, for example, USA and the second is India. ठीक है, there are two countries, for example, USA and India. So they are trading amongst each other. So there shall be a body, international body, which regulates the laws. ठीक है, कि what kind of laws will be applied. Like USA will say कि हमारे laws apply होने चाहिए, India will say कि हमारे laws apply होने चाहिए. So in that situation, there is an organization called World Trade Organization, which maintains the freedom of trade, की which makes laws that ensure, ठीक है, which makes laws and policies, ठीक है, that ensure free trade. Free trade, okay. Free trade means ये नहीं कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं. Free trade means both of the countries do not impose predatory laws to hamper the other's business. ठीक है, and both of the countries follow a set of regulations that ensures कि the trade is fair. Okay, कैसे? For example, if India produces a lot of rice, ठीक है, तो India can export that to USA. उससे होगा क्या कि USA के जो फार्मर्स होंगे, ठीक है, अब USA की मार्केट में बहुत सारा राइस इंडिया से चीप प्राइस पे आ रहा है. क्यों? क्योंकि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ राइस. तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इट्स राइस टू यूएसए. व्हाट इज हैपनिंग नाउ, यूएसए की मार्केट में बहुत सारा राइस आने की वजह से राइस का प्राइस फॉल हो गया. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए में राइस के फार्मर्स हैं, बेसिकली व्हाट दे विल से टू देयर गवर्नमेंट कि why don't you impose some restriction on import of rice from India? Why? Because their import into US market is leading to a fall of price of rice, जिसकी वजह से हमारा cost of production भी नहीं निकल पा रहा है. मतलब in the very simpler terms कि if India is exporting a lot of rice to USA, तो USA में of course rice की supply ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से US के domestic market में rice का price fall हो गया. उसकी वजह से वहां के फार्मर्स विल फेस अ प्राइस क्रैश कि जो चावल वो पहले लाइक $10 में बेच रहे थे, ठीक है, नाउ दे विल हैव टू सेल इन $6. व्हाई? बिकॉज अ सप्लाई ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड. सिमिलरली व्हाट इंडिया कैन आल्सो इंपोज सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, लेकिन फ्री ट्रेड डिमांड्स these restrictions should not be imposed, and the restrictions if imposed should not be arbitrary कि just to protect your domestic market you cannot impose restrictions. ठीक है, you cannot impose restrictions on trade.
तो ये तो एक हो गया आउटलाइन कि हाउ WTO एंड व्हाई WTO, हाउ WTO फंक्शंस, व्हाई इज देयर अ WTO, ठीक है। नाउ सब्सिडीज, कमिंग टू सब्सिडीज, ठीक है। ओके, subsidies. There are two kind of basically subsidies: trade distorting subsidies and trade non-distorting subsidies. So we'll be like looking into two heads: trade distorting and non-distorting. Now why are we talking about subsidies at the first place? Because अभी हमने जैसे एग्जांपल देखा कि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ राइस। अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक फार्मर्स को सब्सिडी देने लगे कि गाइस यू प्रोड्यूस राइस एंड वी विल बी टेकिंग कॉस्ट ऑफ योर इनपुट कॉस्ट, ठीक है। अब इनपुट कॉस्ट, when I'm talking about all these terms, it is very important that you focus on these terms, because these terms, if in economics if the terms are clear, so you'll be like able to handle the concepts. तो अगर एक फार्मर है इंडिया में, उसके इनपुट कॉस्ट क्या होगा? सीड, ओके, फर्टिलाइजर्स, पावर, ठीक है, वाटर इरिगेशन के फॉर्म में, मशीनरी, ठीक है। तो these are kind of input to for a farmer. If government says कि we are going to take care of all these costs, तो farmer will be very much like happy कि okay, you are taking care of all my costs, I will produce a lot of rice, ठीक है। तो इंडिया में राइस का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से दो चीजें होंगी। द फर्स्ट वन कि इंडिया विल बी एक्सपोर्टिंग राइस टू ऑल अदर कंट्रीज, ठीक है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी राइस का प्राइस फॉल हो जाएगा, ठीक, डोमेस्टिक मार्केट में भी राइस का प्राइस फॉल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इंडिया को बस राइस प्रोड्यूस करना चाहिए या और भी क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, राइट? बट इफ गवर्नमेंट सेज कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ योर प्रोडक्शन, मतलब इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि फार्मर्स को 50% सब्सिडी दी जाएगी चाहे आप जो भी प्रोड्यूस करो, ठीक है, तो व्हाट दैट विल डू इज, अब दिस इज यूएसए, यूएसए इज अ मार्केट, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है राइस, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो फार्मर है यूएसए में, ठीक है, फार्मर, he will tell his government that since the government of India is taking care of a lot of subsidies, ठीक है, तो that is why their price, their rice is coming at a cheaper price in USA, ठीक है, which is leading to the loss for farmers in USA, ठीक है, because these farmers are not getting the same kind of subsidy that Indian government providing, तो उसकी वजह से क्या होगा? These farmers will be at loss. To counter that, ठीक है, what government does, what WTO has framed कि subsidies cannot be trade distorting. Now trade distortion हो रहा है यहाँ पे, right? क्यों? क्योंकि एक तो पहले तो market prices are not genuine because of the supply, excess of the supply, and the second is कि जो exports इंडिया बाहर की कंट्री को कर रहा है, ठीक है, उन exports का they will be very cheaper exports, due to which the farmer in this country will face losses. Although this is not the real situation, the situation is very reverse, but I took this example, I don't know how and why I took this example, fine, but anyways I hope you understood this. Okay, ठीक है, again back to trade distorting and non-trade distorting subsidies. Now WTO के अंदर में, WTO की regulations के अंदर में, they have classified subsidies into basically three classes that we are not going to study. We are going to study two kind of subsidies, the third we'll be looking at, ठीक है. The first one is non-trade distorting subsidies. They are called green box, okay.
a special box of subsidies that are green in nature, that is they are not distorting the trade. The second is amber box. ठीक है, amber box subsidies which are present and they are distorting the trade. The other one is blue box, that is not important. Okay, these are also non-trade distorting subsidies, but they are somewhat different from this green box. Now what are trade distorting subsidies? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है वो है मार्केट प्राइस, मतलब एमएसपी रेजिम। एमएसपी रेजिम मतलब मार्केट सपोर्ट प्राइस। इंडिया में एमएसपी इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस एग्रीकल्चरल इश्यूज, ठीक है। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट डज इज, गवर्नमेंट कहती है फार्मर को कि आप प्रोड्यूस करें कोई भी, लाइक वीट, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग वीट, वी विल प्रोक्योर योर वीट, वी विल प्रोक्योर योर वीट एट अ मिनिमम प्राइस दैट सो दैट आपका लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीट का प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया तो इंडिया में ही वीट की प्राइस बहुत फॉल हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड एक्स इनवर्स रिलेशनशिप, इफ द सप्लाई इज हाई तो प्राइस विल फॉल, इफ द सप्लाई इज लो तो प्राइस विल राइज, ठीक है। ऐसे डिमांड का उल्टा क्या है? इफ द डिमांड इज हाई प्राइस इज हाई, डिमांड इज लो प्राइस इज लो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर बहुत सारे लोग वीट प्रोडक्शन करना शुरू कर दें इंडिया में, तो इंडिया में क्या होगा? वीट का एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा, ओके। उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस ऑफ द वीट विल फॉल, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि मार्केट में इतना लो वीट का प्राइस हो जाए कि फार्मर्स जो है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर ना हो पाए, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एमएसपी लगाती है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द मिनिमम प्राइस विच इज गोइंग टू सपोर्ट द फार्मर्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इसमें है ये कि फॉर एग्जाम्पल इफ द वीट इज सेलिंग एट 14 रुपीज पर केजी, ठीक है, तो द गवर्नमेंट विल से कि वी आर इशूइंग अ 10 रुपीज पर केजी एमएसपी। दैट मीन्स अगर 14 रुपीज पर केजी पे ट्रेड कर रहा है वीट मार्केट में तो इट्स ओके, यू सेल योर वीट इन मार्केट। बट अगर मार्केट प्राइस 10 रुपीज से कम आने लगे, अगर मार्केट में प्राइस 7 रुपीज पर केजी चल रहा है, ओके, अगर मार्केट में प्राइस 7 रुपीज पर केजी चल रहा है, व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्शन हैज बीन एक्सेस, तो द प्राइस हैज फॉलन अ लॉट। तो गवर्नमेंट सेज दैट इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन दिस मार्केट, सेल टू अस, सेल टू गवर्नमेंट, ठीक है, सेल टू गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रेडी टू परचेज योर वीट एट रुपीज 10 पर केजी, ओके। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग प्राइस सपोर्ट। जहां 7 रुपीज पर केजी पे बिक रहा था, आप उसको 10 रुपीज पर केजी पे ही खरीदने को तैयार हो, दैट इज द बेसिक फ्लोर प्राइस, ओके। मतलब अगर 14 रुपीज पर केजी मार्केट में बिक रहा है तो लेट्स सेल इन द मार्केट, अगर 7 रुपीज पर केजी में बिक रहा है तो लेट्स सेल टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इशूइंग अ 10 रुपीज पर केजी एमएसपी, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट ये है कि इफ गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंटली इशूइंग एमएसपीज फॉर अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, तो व्हाट फार्मर्स विल डू इज फार्मर्स विल कीप प्रोड्यूसिंग दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रॉप, लाइक हैपेंड इन पंजाब। पंजाब में फार्मर्स को वीट का और राइस का बहुत अच्छा एमएसपी मिला, जिसकी वजह से मोनोक्रॉपिंग, बेसिकली द होल एग्रीकल्चर इन पंजाब हैज बिकम monocropping based agriculture. Either they are producing rice despite being a water scarce state. Punjab is producing a lot of rice because of MSP regime, and similarly they are producing a lot of wheat, and wheat ke, like they are not producing lentils or grams, all these, like they are not producing these kind of crops, rather they are only producing wheat and rice because the government is already issuing a lot of good MSPs for these crops, and there is an assured price कि even if market crashes we are going to get a certain kind of price from the government, ठीक है। तो ये तो एक इसका इकोनॉमिक इकोलॉजिकल ड्रॉबैक हो गया कि it has promoted monocropping, but that is not our issue at hand, ठीक है। what we are doing to study here, what we are studying here is कि this MSP regime is trade distorting. Why?
जो नेचुरल मार्केट में प्राइस होना चाहिए था 7 रुपीज पर केजी होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट इज आर्टिफिशियली फिक्सिंग अ 10 रुपीज पर केजी प्राइस ड्यू टू विच द natural price determination of market has failed. Although this is going to support the farmer, but consumer is at loss. ठीक है, the consumer could have easily bought 7 rupees per kg. Sorry. So that means the MSP regime is distorting the natural price mechanism, price discovery mechanism of the market. I hope you understood that. If you have any doubts, you can ask right now in the comment section. Okay. Okay. So MSP is one trade distorting subsidy. Now non-trade distorting subsidies. अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है किस पे? साइंटिफिक रिसर्च पे, ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ठीक है, तो दैट इज नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग. सिमिलरली if government is procuring for public distribution system, PDS shops, PDS मतलब government is also providing under the National Food Security Act, the government is obligated to provide a certain kind of ration to its citizens, ठीक है, तो that is called PDS, public distribution system. तो PDS के लिए procurement कर रही government, that is not trade distorting, ठीक है. For developing countries it has been allowed that the governments can procure for PDS distribution, ठीक है. And any other subsidy that is not linked to the volume of production, that is not linked to the volume of production, मतलब और ऐसी कोई सब्सिडी जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज ना हो रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी. एज वी सॉ इन एमएसपी, ड्यू टू एमएसपी regime, the farmers are producing a lot of wheat, that is the volume of wheat produced is being increased just because of the subsidy regime, and that is why the volume, since that subsidy is related to the volume of production, it is called a trade distorting subsidy. On the other hand, any subsidy that is not linked to the volume of production is called non-trade distorting subsidy. Okay, so I hope you understood this. ठीक है, तो but what happened was, amber box subsidies के बारे में अगर हम बात करें दोबारा, तो amber box subsidy are what? Trade distorting subsidies, but they have been allowed up to a certain limit. कैसे? For developed countries, okay, for developed countries, ठीक है, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 1989 के प्रोडक्शन का 5% अलाउड है. दैट मीन्स it is a bit of math, we need to do some kind of normalization and all, but that is not important. What is important कि 1989 में जो यूएस का प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज में यूएस आएगा, तो 1989 में यूएस के जो प्रोडक्शन वॉल्यूम था उसका 5% आप सब्सिडी के फॉर्म में दे सकते हो. दैट मीन्स यूएस का प्रोडक्शन वॉल्यूम था 1000 kgs फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1000 kgs का 5% कितना हो गया? ठीक है, 50 kgs. That means US can provide subsidy up to 50 kg to its farmers, right? फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी एक क्लॉज है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लॉज है कि दे कैन प्रोवाइड अप टू 10% ऑफ 1989 प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है. तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्चुअली इट लुक्स लाइक कि डेवलपिंग कंट्रीज को दुगना मार्जिन प्रोवाइड किया गया है टू प्रोवाइड सब्सिडीज, ठीक है, बिकॉज
यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 5% है 1989 के प्रोडक्शन वॉल्यूम का। लेकिन the one thing that we need to understand is कि 1989 में डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोडक्शन वॉल्यूम ही बहुत कम था। इट वाज अराउंड 300 kgs। मतलब it was not around 300 kgs. Of course, it is a comparison that we are making. अगर 1000 kg प्रोडक्शन वॉल्यूम डेवलप्ड कंट्रीज का था 1989 में, तो 1989 में ही डेवलपिंग कंट्रीज का जो एवरेज प्रोडक्शन वैल्यू था दैट वाज अराउंड 300 kgs। अब 10% ऑफ 300 kgs कितना हो जाएगा? ठीक है, 30। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 10% है और ये 5% है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका 5% इज ग्रेटर देन द 10% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स द डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग अ रिलेटिवली स्मॉलर शेयर और स्मॉलर कोटा टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू इट्स फार्मर्स। ठीक है, whereas despite having a lower percentage 5%, the developed countries are having a higher share or higher quota to provide subsidies to its farmers. Understood? That means the developed countries, although they are developed, they have very high production volumes, still they can provide a greater subsidy than the developing countries. But subsidy की जरूरत किसे है? Of course not the rich. The poor need subsidies, but poor are not getting the proper subsidies. अब इसको लेके ही WTO में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, एंड वही कन्फ्लिक्ट 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 में, बाली इज इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 में एक पीस क्लॉज साइन हुआ। पीस क्लॉज क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज वर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सीडिंग देयर वॉल्यूम ऑफ सब्सिडी। दैट मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज का आर्ग्यूमेंट ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सीडिंग द वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सिडी दैट दे शुड प्रोवाइड। इनका कहना है, डेवलपिंग कंट्रीज का, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग ग्रेटर देन 10% ऑफ देयर सब्सिडी शेयर। ऑफ कोर्स जब 1989 में 300 kg वाज द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नाउ दैट हैज बिकम अराउंड 1000 kgs। ठीक है, तो हमारा सब्सिडी का शेयर भी तो बढ़ेगा, क्योंकि हमारी फार्मिंग में लोग ज्यादा हैं, फार्मिंग ज्यादा हो रही है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो रही है, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी सब्सिडीज भी तो इंक्रीज हो गई हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर ब्रीचिंग द 10% सब्सिडी लिमिट एवरी टाइम। ठीक है, तो यही कह रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज, कह रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉन्स्टेंटली ब्रीचिंग द 10% लिमिट ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज आर सेइंग यस वी आर ब्रीचिंग बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज नाउ ग्रोइंग एंड वी आर गोइंग इनटू द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। हमारे डाइट पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सब्सिडी भी इंक्रीज करनी पड़ रही है। ठीक है, बट डेवलपिंग कंट्रीज आर सेइंग कि भाई आपका तो 5% हमारे 10% से ही ग्रेटर है, तो ये तो हमारे साथ तो धोखा हुआ है। ठीक है, कि आपका 5% जो है वो हमारे 10% से वैल्यू में ग्रेटर है, तो ये तो हमारे साथ तो वी हैव बीन चीटेड। तो अब यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बहुत लड़ाई हुई। फिर 2013 में WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में एक पीस क्लॉज साइन किया गया। पीस क्लॉज में ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज कैन exceed their production volume, can exceed their amber box subsidies by 10%, but they will have to report their subsidies. ठीक है, that means developed countries want to monitor, they want to see कि आप कितना एक्सेस में आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा ठीक है कि आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो एक्सेस में, बट यू विल हैव टू रिपोर्ट दैट सब्सिडी टू WTO।
so that we can understand कि to what extent are you breaching that limit. अब second clause ये था, developed countries ने ये कहा कि if you do one, then we will not take you to WTO dispute settlement mechanism. मतलब अगर आप रिपोर्ट करते रहोगे हमें कि हम भाई 10% के बजाय 15% सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम आपको WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में नहीं लेके जाएंगे. अब WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है? इट इज काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पे अगर यूएस को लगता है कि इंडिया अपना सब्सिडी एक्सीड कर रहा है एंड इंडिया इज नॉट इवन टेलिंग कि हाउ मच आर वी एक्सीडिंग और सब्सिडी लिमिट, तो WTO can take India to USA can take India to WTO dispute settlement mechanism, and if that WTO dispute settlement mechanism arbitration rules in the favor of US, तो India will have to comply with the ruling. ठीक है, because India is a part of WTO. All the members of WTO will have to comply with the ruling. It is an international law. ठीक है, तो अगर आप हमें बताते रहोगे कि आप कितना ब्रीच कर रहे हो अपने लिमिट को, तो हम आपको WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में नहीं लेके जाएंगे. दिस इज अग्रीमेंट, दिस इज पीस क्लॉज. ओके, तो इंडिया हैज नाउ इन्वोक्ड दैट पीस क्लॉज इन द फेवर ऑफ, लाइक यस वी आर ब्रीचिंग आवर राइस एक्सपोर्ट, राइस सब्सिडीज, तो प्लीज डू नॉट ड्रैग अस टू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. ठीक है, I hope you understood this. This is a very important and like interesting topic as well. ठीक है.